शुरू कीजिए। Mrs. XYZ, age 43 years, para 4, last childbirth 15 years ago, complains of something coming out of vagina for 2 years. And she has difficulty in initiating micturition. चलिए मैं दोहरा देता हूँ। Age 43, para 4, last childbirth 15 years ago, complains of something coming down for 2 years, and she has difficulty in initiating micturition. जी बोलिए। सर ये जी सर ये स्ट्रक्चर केस है जी। स्ट्रक्चर केस है, लाइफ पेशेंट से मतलब पूछना है या एग्जामिनर से पूछना है, ये पूछना चाह रहे हैं। नहीं ये मैं आपका पेशेंट हूँ, मेरी ये कंप्लेंट सब पूछिए मुझसे, पेशेंट से पूछिए। ओके अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सदफ है, मैं गायनी के शोबे से ताल्लुक रखती हूँ और आज आपके मसले के बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ। अच्छा मतलब इसके लिए चूंकि ये टॉक स्टेशन पे है, आपके पास 8 मिनट हैं, ये सारा लंबा कहने के बजाय आई इंट्रोड्यूस माय सेल्फ बस। ठीक है सही है सर। ओके सर, इंग्लिश में बोलना है उर्दू में बोलना है, मतलब लाइव पेशेंट मेरा ख्याल अंग्रेजी में बोले तो अच्छी बात है, क्योंकि इम्तिहान में अंग्रेजी में। सही है, तो आई विल इंट्रोड्यूस माय सेल्फ एंड देन आई विल आस्क द पेशेंट about the mass that as she has told me, the match is match is outside for last 2 years, but I would like to ask about whether it stays outside all the time or it needs to reduce manually or it goes spontaneously, and as she has told me that there is a difficulty in initiating micturition. I will also ask to know about any other urinary complaints, any bowel complaints, any bleeding or discharge, any backache or dragging sensation. I would like to ask to exclude the risk factors like chronic cough, constipation, any feeling of mass in abdomen, any history of weight lifting, and what does she do by profession. I will also like to ask about history of any good sized baby, instrumental vaginal delivery, perineal tears, or any difficult labor. Excellent. Okay, I will also like to review any gynecological, medical, surgical, personal history, or any drug allergy. I will also like to know about any treatment she has taken up till now. Then in examination, better nahi ho sakta, mashallah. Chalo. Thank you so much, sir. Okay, I would like to review her in examination. I would like to review the BMI. थोड़ा सा इसमें ऐड कर लीजिए any family history. Okay, सही है। तो family history और any cough and constipation, ये बस 2-3 बातें ऐड कर दी, लेकिन it's very good. चले. Thank you. Okay, I would like to know about I would like to review the examination in which I would like to ask about the BMI, as it is basically is a risk factor for prolapse, a chest auscultation for any chest complaints, abdomen to rule out any abdomen mass, and I will do the local examination to see any prolapse. For the type of prolapse, any anterior compartment and posterior compartment prolapse, any perineal deficient. I would like to palpate the prolapse for the degree of prolapse, and then I will reduce it to I will then reduce it and do the bimanual examination. And I will, in same position, I would like to see any interosseum. In investigation, थोड़ा सा improve कर दूँगी. You are doing extremely well. तो पहले तो prolapse में जरूरी है कि local examination में आप उसकी position describe करिए. I like to examine her in dorsal position, lateral position, or whatever position. Position is very important. जो कि जब आपने कहा ना speculum examination करूँगी, तो वो फिर उसमें ये होना चाहिए, आप examiner को बताना पड़ेगा कि वो dorsal position में speculum होता है कि lateral में होता है कि क्या होता है.
तो इसलिए शुरू से ही कीजिए, I'll do local examination in dorsal position and look for whatever. और फिर for speculum examination it will have to be done in left lateral or जो भी position आपने. चले. Okay, sir. Then in investigation, I would like to see the health profile of the नहीं patient. नहीं ये खत्म नहीं हुआ ना इसको जरा और elaborate करिए during examination. Yeah, I'd like to evaluate what degree the local prolapse is and also whether there's any ulcer or not. ये और फिर उसी में वो आपकी एंटेरोसील भी आ गई कि वो है कि नहीं. ये तीन चीजें कहनी चाहिए आप. फिर कहिए local examination. Okay, in local examination, I would like to see the type of the prolapse. I will palpate for the degree of the prolapse, any ulcer, and I will, in same position, I would like to see the enterocele. Good. बिल्कुल ठीक कहा. ऐसे ही बोलना इम्तिहान में. या अगर एग्जामिनर पूछेगा कि डिग्री ऑफ प्रोलैप्स के क्लासिफिकेशन क्या है, फिर आप बताइए, वरना बस इतना सा ही काफी है. वेरी गुड. चले फिर उसके बाद. सर पैप्स में बोलना भूल गई वैसे. पैप्स वो तो हर लोकल एग्जामिनेशन में होना ही चाहिए. ठीक है. Okay, now proceed for exam investigation. In investigation, I would like to see the basic health profile of the patient. And in specific, I would like to see the midstream urine detailed report for any pus, proteins, and sugar. Good. And I would like to see the ultrasound abdomen pelvis to rule out any uterine adnexal pathology or any abdominal mass. And I would like to, if it is third or fourth, if third degree prolapse, then I would like to see the ultrasound KUB for the ureter and the bladder status. Good, good. फिर ये सारा हो गया. And let's say कि there is no decubitus ulcer और ये उसकी findings है. She has got, let's say, third degree uterovaginal prolapse. What do you understand from that? When I say third degree uterovaginal prolapse, what do you understand from that? It means the uterus is lying outside the vulva, outside the introitus or vulva. Uterus? Utero and vaginal, all the uterus and the interior and the posterior walls. ये कौन सी क्लासिफिकेशन आप फॉलो कर रहे हैं? बीचम की सर. ये उसमें थर्ड डिग्री में बाहर होता है. ये वो तो यूट्रस बाहर होती है जब फोर्थ डिग्री होता है. फर्स्ट डिग्री जो आमतौर पर फॉलो किया जाता है बार्डन वॉकर, उसमें फर्स्ट डिग्री सर्वाइकल डिसेंट अप टू 1 सेंटीमीटर अबव हाइमन. सेकंड डिग्री 1 सेंटीमीटर बिलो द हाइमन. तीसरा है सर्विक्स लाइंग आउटसाइड. चौथा है जिसको प्रोसिडेंशिया भी कहते हैं, एंटायर यूट्रस आउटसाइड. आप कौन सा फॉलो करते हैं? मेरे पास तो ये है. जी सर, जो आप बता रहे हैं वो बैडिंग वॉकर है और बीचम में ये है कि थर्ड डिग्री में ही जो है सब कुछ बाहर है. चलो ये ठीक है. वो मुझे नहीं पता, लेकिन आपने नाम बोला है तो ठीक होगा, जरूर ठीक होगा. चले सर अब आप इसमें मेरी करेक्शन करें. एग्जामिनर कह रहे हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय थर्ड ड्यूबी प्रोलैप्स, तो बीइंग अ कैंडिडेट इसका एक्चुअल करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? तो वो आप कह दीजिए कि जो भी आप फॉलो कर रही हैं, सर अकॉर्डिंग टू दिस थर्ड डिग्री इज द होल यूट्रस इज लाइंग आउटसाइड, जिसको प्रोसिडेंशियल. और वो एग्जामिनर कहे कि आपको कोई और भी आता है, नहीं भी आता तो कोई डजंट मैटर. जैसे मैंने बार्डन वॉकर कहा, आपने कोई और कहा, तो आपने नाम लिया है तो उसमें है सच सो मेनी ये क्लासिफिकेशन. जो भी आप फॉलो करें उसी को करें, डजंट मैटर. ठीक है. तो थर्ड डिग्री यूट्रोवेजिनल प्रोलैप्स है ये. आप
की क्लासिफिकेशन में एंटायर यूट्रस इज आउटसाइड। Okay. इसका दूसरा नाम क्या है? मैंने Procedentia. प्रोसिडेंशिया। So she is a case of prosidentia. How will you manage this patient? So I will explain the patient as she is 43 years, para 4, complaining of a mass coming out of vagina for the last 2 years, and on examination it is a 3rd degree UV prolapse. So I will discuss the options of treatment depending on her history examination. There अरे are वो हो गया ना। In conservative. this case, ऐसा In this बोले ना, case, in this case, yes, in this ये case, वो I will discuss एग्जामिनेशन the हो गया है in this case का, इसके लिए आपने बोलना है। Okay, so in this case, I will discuss the options. Either one is the conservative treatment, and other is the surgical treatment. In conservative treatment involves the pessary, which has the risk its own risk. Is this your first choice for this patient? No, sir. I'm discussing the options. नहीं, ऑप्शन आप नंबर 1 वो देंगे जो आपकी नंबर 1 ऑप्शन। Okay. ये आज का ये मैसेज है आपको। Okay. इन एवरी पेशेंट, वो एंडोमेट्रियोसिस की है, वो फाइब्रॉइड की है, वो प्रोलैप्स की है, जो भी है, आपकी पहली चॉइस पहले होनी चाहिए। यू आर ए गुड कैंडिडेट, यू आर ए गुड कैंडिडेट। तो इसलिए आपकी पहली चॉइस होनी चाहिए, ना कि किताब की पहली चॉइस होनी चाहिए। Okay. आप कहते हैं मैं डिस्कस विद द पेस्ट्री, डू यू थिंक दिस इज फर्स्ट चॉइस ट्रीटमेंट फॉर दिस पेशेंट? No, sir. नहीं, But तो I'm ऑब्वियसली offering her. इट इज नॉट। तो उसको कहिए, ज्यादा एग्जामिनर्स को सीधा ये कह दीजिए, मैडम इन दिस केस द चॉइसेस आर सर्जरी पैसे, पहले बोल दीजिए इस तरह हेडिंग, सर्जरी पैसरी, ताकि एग्जामिनर ये ना कहे कंजर्वेटिव आपने बोला नहीं। समझे? Okay, so I will. In this patient, treatment options are number 1 surgery, number 2 pessary. Okay, so in this patient, the options are surgical treatments and the conservative treatments. Surgical treatment includes vaginal hysterectomy and Surgical treatment is number 1 choice. G. That is my first choice. Okay, ये भी आगे add कर दें, सही है। तो the options of treatment in this patient are surgical treatment, which includes vaginal hysterectomy, which is my first option of treatment, and the second option is conservative, which includes pessary. I will discuss the pros and cons of each option and will proceed according to her wishes. Hello, good. अब वो because you are a good candidate, वो ये आप 7-8 मिनट में खत्म कर लेंगी, तो उनके बाद 2 मिनट होंगे, तो वो उसमें पूछेगा फिर जो उसके प्रोटोकॉल में नहीं लिखा हुआ, वो आपसे पूछेगा कौन क्या सर्जरी करेंगी आप, और उसके हो सकता है वो स्टेप्स भी पूछ ले, स्पेशल क्या करेंगी आप, तो वो थोड़ा सा बोलिए फिर। Okay, so you are doing vaginectomy and repair. In this case, what will be special steps or care you will take in this patient? So please repeat the question. In this case, if your first choice is surgery, what surgery you will do? You have said vaginal hysterectomy and repair. I will proceed for vaginal hysterectomy and repair. The steps of this. Full stop. Full stop. आप आगे नहीं बोलना, आगे नहीं बोलना, यहाँ पे आपका इम्तिहान मुकम्मल हो गया। But if you have done all this in 7 minutes, you got still 2 minutes. तो इसलिए उसमें अच्छे कैंडिडेट के लिए फिर ये सवाल भी पूछेगा कि जी मुझे स्टेप्स ऑफ सर्जरी बताओ। Okay, in vaginal hysterectomy, I will hold the anterior and posterior. Of course, after doing the preoperative preparation, I will proceed for the vaginal hysterectomy, in which I will hold the anterior and posterior lip of cervix with the valsalum. नहीं, वो इतनी ऐसे नहीं बोलना, ऐसे ना बोल, वो तो फिर 7 मिनट में हिस्टेरेक्टमी ही होगी। आपने तो 2 मिनट में बताना कि आपने ये कहना कि during vaginal hysterectomy and repair, I'll take special measures to avoid
recurrence by doing this. ये है ये आप जैसे कैंडिडेट का जवाब। ये लिप शिप नहीं पकड़े। अच्छा सर, और आपने लिगामेंट्स का बता स्पेशल दें। क्या करना है इसमें? स्पेशल तो मैकॉल स्पेशल ये प्लास्टी। करना है कि इसकी रिकरेंस ना हो, हाँ एंटेरोसेल ना हो। जी, I will take the preventive measures to prevent the recurrence by doing the McCall plasty, in which I will do the plication of the uterosacral cardinal ligament to the pouch of Douglas to obliterate it. बस ये बोलना है सर। हाँ, यही तो आपको 10/10 नंबर लेके देगा। ओके। वरना आप एंटीरियर लिप पोस्टीरियर लिप को पकड़ के फिर ब्लैडर को डिसेक्ट, फिर कार्डिनल, फिर यूट्राइन, फिर ये वो तो पूरे 10 मिनट की डिस्क्रिप्शन है। वहां एंटेरोसील तक आप पहुंचेंगे ही नहीं तो आपको कोई एक्स्ट्रा क्रेडिट नहीं मिलेगा। ओके। So during this I'll do vaginectomy and take special measures to avoid recurrence or enteroceal or या wall prolapse। उसके लिए मैंने ये स्पेशल दो तुमने लफ्ज बोले हैं, ये मेजर्स लूंगी। ओके। फिर आपके पूरे के पूरे नंबर। ओके सर, और क्वेश्चंस पूछें? मैं पूछता हूँ, रिलैक्स। तो इस तरह से हम चले तो ये सारा आपने कंप्लीट कवर कर लिया। देखो उसमें हमने पैसरी के चक्कर में नहीं गए, वरना जिस तरह आप बोल रहे थे पहले पैसरी डिस्क्राइब करनी पड़ती, रिंग पैसरी, चेंज, ये वो वगैरह, जो इसके लिए है ही नहीं। फिर जिस तरह आप बोले उसमें आप स्टेप्स ऑफ वेजाइनेक्टमी बोलते रहते और वो घंटी बज जाती, एंट्रोसिल तक पहुंचे नहीं, इसलिए वो एक्स्ट्रा मार्क्स आपको ना मिलते। सो आप ये समझिए कि टॉक्स में आपने जो स्पेशल क्वेश्चंस हैं उनका ख्याल रखना है। स्पेशल क्वेश्चन जो हैं उनका ख्याल रखना है। मतलब जैसे मैंने कहा कि आपने हिस्ट्री ली, उसमें वो फैमिली हिस्ट्री बड़ी जरूरी थी, क्योंकि फैमिलियल होता है ये। और फिर दूसरा आपने एग्जामिनेशन का लोकल एग्जामिनेशन बड़ा डिटेल में बोलना है, कौन सी पोजीशन, कौन सा स्पेकुलम, कौन सा क्या। और फिर ये आपने अच्छा किया मुझे ये आपने मुझे सिखाया कि क्लासिफिकेशन जब बोलो तो उसके साथ नाम बोलो कि कौन सी क्लासिफिकेशन आप बोल रहे हैं। सर एक क्वेश्चन है प्लीज। मैं एक मिनट, क्लासिफिकेशन बोलो तो उसके साथ नाम बोलो, क्योंकि 3-4 है, हर एक में फर्स्ट सेकंड थर्ड डिग्री का आपस में फर्क हो जाता है, तो आपने नाम बोलना है। और फिर उसके बाद ये जब आपका सारा हो गया फिर आपने उसको काउंसिल कर दिया और फर्स्ट चॉइस जो है वो बोलो जो आपकी फर्स्ट चॉइस। इसमें पैसिव फर्स्ट चॉइस नहीं है, क्योंकि 43 सेकंड थर्ड डिग्री प्रोलैप्स है और ये 2 साल से उसको इनकन्वीनियंस है और वगैरह वगैरह। उसकी जो ट्रीटमेंट है वो सर्जरी भी कौन सी वो बोल दी आपने। और फिर उसके स्टेप्स बोलेंगे तो वेजाइनेक्टमी करते हुए I'll take special measures to avoid recurrence, word prolapse now। इस तरह से बोलेंगे तो माशाल्लाह आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। जी, अब आप क्या पूछना चाहती हैं? तो बीच में बोली। सर मैं 43 इयर्स एज है, तो सर ओवरीज के बारे में हम क्या करेंगे? क्योंकि सिंपल क्वेश्चन तो चलो है कि हम जानल कर रहे हैं, तो ओवरीज आपने कर दिया। आप रूटीन में ना वो सब्जेक्ट टॉपिक के अंदर लाइए, इसमें वो जिस तरह इन्होंने बोला सदर ने उसी तरह बोलिए। लेकिन एग्जामिनर पूछे आपसे कि शीट 43 व्हाट आर व्यूज रिगार्डिंग रिमूवल ऑफ ओवरीज, तो आई वुड से कि जी 43 में तो आई विल नॉट रिमूव, क्योंकि मीनोपॉज उसकी 55 में होनी है। 12 साल पहले ही उसको HRT पे क्यों डाले हम?
तो इसलिए मेरा व्यू ये होगा, in this case if the ovaries are healthy, I'll save them. Thank you so much, sir. ऐसा बोल सकते हैं ना, as my patient is 8 to 7 years away from the menopause, so I will do the vaginal vasectomy with the conservation of ovaries. If they are healthy. If they are healthy, तो ये भी ऐड कर लेते हैं. Okay. Good. सर ठीक हो गया? जी सदफ और जी सर मैं हिरा मैम तुम सर एग्जाम कब दे रही हो? सर इसी में दे रही हूँ, इसी अटेम्प्ट में इंशाल्लाह. मैं आज ही तुम्हें आपकी सर्टिफिकेट दे दूं. ओके, तो दुआ कीजिएगा प्लीज हम सबके लिए पास हो जाए. सर क्वेश्चन है मेरा. सर मेरी एक रिक्वेस्ट है कि सर मेरा कुछ नेट इशू था, तो डॉक्टर साहिबा से कहें कि ये रिपीट कर दें हिस्ट्री से टिल मैनेजमेंट तक, प्लीज समराइज कर दें. हम शुरू करते हैं. ये अच्छी बात है, बिकॉज ये जो अच्छी बात हो उसको रिपीट करते रहना चाहिए. आपके बिल्कुल ठीक है. डॉक्टर हसन अली आप बोल रही हैं, नाम तो मर्दाना है, आवाज जनाना है. सर मेरा एक क्वेश्चन, सर मैं रिपीट करती हूँ पर मुझे एक क्वेश्चन है मेरा, मैं भूल ना जाऊँ. पहले क्वेश्चन पूछ लो. सर एक दिन मैंने एक वर्कशॉप अटेंड किया था, उसमें एग्जामिनर कैंडिडेट ने बोला आई वुड लाइक टू नो द अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन पेल्विस. तो एग्जामिनर बोला I would like, इसने यूवी प्रोलैप्स के केस में बोला कि I would like to see to know the ultrasound abdomen and pelvis to exclude जो है वो जिसने बोला कि to exclude any uterine and adnexal pathology and to exclude any abdomen mass. एग्जामिनर गेट इरिटेटेड एंड उसने कहा कि तुम्हें जो है ना पेशेंट मेनोपॉजल है, उसके इतने छोटे से यूट्रस में तुम क्या ढूंढना चाह रही हो, तुम्हें पता नहीं कि इसमें कुछ भी नहीं है क्या? तो उस पर ना तो उस पर आपने सही बोला, आज जो बोला गया सही बोला गया. अच्छा, बस यही बोलना है एग्जामिनर ताकि सेटिस्फाई रहे. हाँ बिल्कुल, आपने सही बोला बाबा. ओके ओके सर. हाइड्रोनेफ्रोसिस भी तो देखेंगे. जी क्या मरिया क्या कह रही हूँ? सर मेरा एक क्वेश्चन है. सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि सर जो यूट्राइन प्रिजर्विंग प्रोसीजर्स हैं, तो पेशेंट से सर पहले ये नहीं कहेंगे कि इन सर्जिकल प्रोसीजर आई विल डिस्कस विद द पेशेंट द डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शंस, कि मतलब वो क्या चाहती है, यूट्राइन प्रिजर्विंग प्रोसीजर्स चाहती है या वीएच चाहती है? जी मैंने आपने सही पूछा, लेकिन हमने भी जो बोला वो सही बोला कि हम फर्स्ट चॉइस सर्जिकल देंगे, सेकंड चॉइस कंजर्वेटिव देंगे, पैसरी देंगे. जी सर सर्जरी में भी तो दो तरह इस बात को जरा और क्लियर कर लें. जी सर, कि मैंने साथ ही बोला चाहे एंडोमेट्रियोसिस है, चाहे फाइब्रॉइड है, चाहे कुछ है, आपने उस ऑर्डर में बोलना है ट्रीटमेंट जिस ऑर्डर में आपकी फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस. किताब के मुताबिक हमेशा मेडिकल, फिर सर्जिकल में भी कंजर्वेटिव, मायोमेक्टमी, फिर हिस्टेरेक्टमी, इस तरह से किताब में लिखा हुआ है. लेकिन जिस पेशेंट की फाइब्रॉइड में आपने हिस्टेरेक्टमी करनी है वो उसको कहेंगे इन दिस पेशेंट आई विल काउंसल माय पेशेंट, द फर्स्ट चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट इज हिस्टेरेक्टमी, सेकंड चॉइस इज मायोमेक्टमी. इस तरह से बोलेंगे. आपने फर्स्ट चॉइस जो आपकी है पहले बोलनी है, वो अच्छा कैंडिडेट है. जो किताब का कैंडिडेट है वो बोलेगा कि जी एक्सरसाइज, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज दूंगी, फिर बोलेगा पैसरी दूंगी, फिर बोलेगा कि मैं इसके कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट जो भी हो सकता है वो इसमें सारे लागू नहीं होते. तो आप अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं और अपना मेरिट को कम कर रहे हैं. इसलिए आपने जो फर्स्ट चॉइस है किसी भी पेशेंट में, अगर आपका इनफर्टिलिटी का पेशेंट है, फर्स्ट चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट इज आईवीएफ. ठीक है उसकी हिस्ट्री से, उसके टेस्टों से, तो फिर आप उसको काउंसल माय पेशेंट दैट फर्स्ट चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट इज आईवीएफ. However, if she cannot afford, then I'll look into possibility of IUI. वो उसकी ट्यूब्स वगैरह ठीक है तो फिर वो ठीक है सर. इस तरह से बोलना. आज के इस लेक्चर में बड़ी ही इम्पोर्टेंट बात निकली है. जी सर. वो निकली है कोई भी बीमारी हो वो उसका आई विल काउंसल माय पेशेंट अबाउट द ट्रीटमेंट, एंड वो 3-4 सीधे पहले बोलिए
सर्जिकल करके उसकी डिटेल बोलना शुरू कर दे, बाकी ना बोले, फिर आपको पूरे नंबर नहीं है। आपने बोला है इन दिस पेशेंट द ट्रीटमेंट ऑप्शंस आर सर्जिकल और पेसरी। ऑब्वियसली पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज इसमें नहीं आती। और आज हमारे पास टाइम है अभी, तो वी कैन डिस्कस यंग पेशेंट एज वेल। तो मैं वो मेरा ख्याल है मैं कर ही लूँ वो आपसे, लेकिन बिकॉज सदफ तुम्हारे ऊपर तो फरमाइशें आने लगी कि तुम फिर बोलो ये सारा कुछ जो बोला है आज। माशाल्लाह, वेरी गुड, वेरी गुड। चले फिर आप 5 मिनट में ही ये सारा कुछ फिर बोल दीजिए, ताकि वो ऑर्डर हमें सही हमारे समझ में आ जाए। चलिए ये पेशेंट सर एक क्वेश्चन प्लीज। जी बोलिए सर, एक क्वेश्चन प्लीज क्लियर कर दें कि प्रोसीडेंशिया में जब यूट्रोविजाइनल प्रोलैप्स होता है तो एंटीरियर और पोस्टीरियर वॉल का प्रोलैप्स भी कुछ ना कुछ जरूर होता है, तो हम इसका पोस्टीरियर विजाइनल हिस्टेरेक्टमी विद एंटीरियर एंड पोस्टीरियर रिपेयर बोलें या ओनली विजाइनल हिस्टेरेक्टमी? ये बोले जो आपने बोला, ये बोले विद एंटीरियर एंड पोस्टीरियर रिपेयर। जी पोस्टीरियर नहीं कह रही, एंटीरियर कॉर्पोरेफी एंड कॉर्पोपेरिनियोरेफी, ये इस तरह से बोलना। ओके सर, थैंक यू। एंटीरियर कॉर्पोरेफी एंड कॉर्पोपेरिनियोरेफी, वो पोस्टीरियर नहीं कहते क्योंकि उसमें पेरिनियम की रिपेयर होती है। चले सदफ 5 मिनट में बोलो, ये पेशेंट है, क्या करोगे? Okay, I will ask about the duration. Ask about the duration, any increase in the intensity, whether it stays outside all the time or it goes spontaneously, whether it stays outside all the time or it comes out on the standing or cuff, whether it needs to reduce manually or it goes spontaneously on outside, whether any history of urinary or bowel complaint, any bleeding, discharge, any back ache or dragging sensation, any history of chronic cough, constipation, weight lifting, feeling of lump in abdomen, any history of good sized baby, difficult labor, instrumental vaginal delivery, perineal tears, and any history of and also any history of any treatment she has taken up till now, and how much it is affecting her quality of life. I would also like to review her gynecological, medical, surgical, family history, personal and drug allergy. And in examination, I would like to review her BMI, as obesity is a risk factor for the UV prolapse, and chest auscultation for any chest complaints, abdomen examination. ये हेलो हेलो, मैं उनका बिजली चली गई है, कंप्यूटर में कुछ खराबी। हेलो सदफ, सर माइक तो उनका ऑन है वैसे। फिर वो पूछो उससे खैरियत है। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। तब तक एक ये बोलना था कि एक लास्ट टाइम एग्जाम में हमारे पास आया था यूवी प्रोलेप्स विद अल्सर आया था, और वो फ्रेश अल्सर था। एक मिनट सदफ के जरा भाई, वो एकदम से चुप चुप कर अल्सर के भी बात कर लेते हैं। सर वो डॉक्टर सदफ ना रीजॉइन करेंगे, उन्होंने एग्जिट किया, उनका इंटरनेट का कोई प्रॉब्लम आया। क्या कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम? जी सर, अभी सर उन्होंने यहाँ से एग्जिट किया, अब दोबारा रीजॉइन करेंगे। वो मतलब शी इज ऑलराइट ना सर? जी सर, जी सर। चलो फिर ठीक। हाँ जी, वो डिक्यूबिटल अल्सर की कौन बात कर रहा, पूछिए क्या? हम में से भी कोई अल्सर की बात कर रहा था? डॉक्टर सुनीता थी सर। सदीका, हेलो, ये क्या हो गया यार आज? जी डॉक्टर। जी सर। डॉक्टर सदीका पूछ रही थी कि जी अल्सर सर हमारा आया था, प्रोसीडेंशिया था, उसके लेटरल वॉल में फ्रेश अल्सर था,
तो हाँ। उस हिस्ट्री में मतलब स्पॉटिंग की हिस्ट्री थी उसकी, तो एग्जामिनर ने जैसे इन्वेस्टिगेशन मांगी तो उसमें बायोप्सी जो उसकी थी उसमें स्क्वामस सेल कार्सिनोमा आया था। हाँ। तो उसमें मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि वो वजाइना का है, सर्विक्स का है या किसका है स्क्वामस सेल कार्सिनोमा? वो अल्सर से बायोप्सी जहाँ कैसे से की वहीं का होगा। मतलब हमने कहा जैसे बायोप्सी में स्क्वामस सेल कार्सिनोमा है, तो जहाँ से हाँ बायोप्सी मतलब बायोप्सी वेजाइन हुई वहीं का होगा। और सीए सर्विक्स मेजॉरिटी केसेस 90% केसेस स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। तो जो अब लेटरल वेजाइनल वॉल पे अल्सर था तो हम वेजाइनल कार्सिनोमा उसे कंसीडर करेंगे ना फिर? और जी बिल्कुल, अगर दो ही बातें हो सकती है, या वो एक्सटेंशन है सीए सर्विक्स की, या वो विजाइनल कार्सिनोमा। क्योंकि विजाइनल कार्सिनोमा ये लोअर जेनिटल ट्रैक्ट में सबसे अनकॉमन है, सबसे अनकॉमन है। तो इसलिए आप ये कहिए कि बिकॉज vaginal carcinoma is uncommon, possibly it could be ulcerative CA cervix. After all, जो vaginal epithelium है वो एक्टो सर्विस को वही कवर करती है। Carcinoma initiates from the columnar junction or squamous cell के epithelium के जहाँ पे जंक्शन है वहां से शुरू होता है। तो लेकिन विजिबली मैक्रोस्कोपिकली इट कैन बी विजिबल अवे फ्रॉम दैट जंक्शन। तो आप बहुत लंबी मैंने बात कर दी, सिंपल कि जी ये स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, द कॉमनेस्ट कार्सिनोमा इज सीए सर्विक्स, बट इट कुड बी vaginal, however the location will decide. ठीक, चलें Okay, और कुछ, और कुछ एक और केस कर लें फिर। सदफ, मुझे फिक्र हो गया एकदम, क्यों चुप कर गए, वो आ गई है वापस? नहीं आई? अरे भाई उसकी कोई दोस्त है तो डॉक्टर टेलीफोन करके पूछ। डॉक्टर अगर अल्सर हील नहीं होता 2 वीक्स तो कहते हैं बायोप्सी लेनी चाहिए। वो हम कहाँ से बायोप्सी लेते हैं? एंडोमेट्रियल बायोप्सी? ऑलवेज ठीक किया आपने सवाल। और इफ देयर इज अल्सर, biopsy should be always taken from the margin of the ulcer. ओके उसकी बेस जो होती है, इट इज कवर्ड बाय डेड टिश्यू, नेक्रोटिक मटेरियल। मार्जिन इज द ग्रोइंग पार्ट ऑफ द अल्सर। तो इसलिए कहीं पे भी अल्सर हो, आपने बायोप्सी लेनी है फ्रॉम द मार्जिन ऑफ द अल्सर, चाहे सर्विक्स पे है, कहीं पे है, कुछ। वो पूछे क्यों, कहिए जी द ग्रोइंग पार्ट ऑफ द अल्सर इज द मार्जिन। और बेस जहां से हम अक्सर वैसे ही उठा लेते हैं, बेस पे नेक्रोटिक मटेरियल ज्यादा होता है और माइटोटिक टिश्यू कम होता है। ओके, थैंक यू सर। चलिए, कोई वॉलंटियर है? एक और केस कर ले, 10 मिनट है हमारे। सर मैं कर लेती हूँ, डॉक्टर सुनीता। सुनीता, पिछला इम्तिहान दिया। सर अगर पेशेंट का प्रोसीडेंशिया है और उसके अंदर कोई कोमॉर्बिडिटीज है कि हम उसकी सर्जरी नहीं कर सकते, तो उसमें इस केस में पेस्ट्री का कितना रोल है? और कौन सी पेस्ट्री? हमारे पास तो रिंग पेस्ट्री आती है, तो उसका कितना रोल है? तो बहुत कम रोल है। हम यहाँ मजबूरी है, हमने कंट्रा इंडिकेट कर दी सर्जरी, कंट्रा इंडिकेट कर दी सर्जरी फॉर किसी को मॉर्बिडिटी की वजह से। तो जाहिर है कि हम ऑपरेशन कर नहीं सकते, तो फिर द ओनली ट्रीटमेंट लेफ्ट इज पेसरी। पेसरी का आप इसके पेशेंट में साथ ऐड कर देंगे कि इन दिस केस I'll use the largest size of pessary, क्योंकि पेसरी इफेक्टिव है कि वो
ऊपर जाके वजाइना में ऊपर जाके it rests on the medial margins of levator ani. वो medial margins of levator ani पे रेस्ट करती है, तो फिर प्रोलैप्स को नीचे नहीं आने देती। तो इसलिए आप ये कहिए ताकि आपको वो एग्जामिनर को सेटिस्फाई कर सके। In this case, the treatment of choice is surgery, but because it is contraindicated, because of comorbidity, I prescribe pessary, and I'll make sure the larger size of pessary so that it rests on the margins of levator ani. आप फट पास, आपको रोक ही नहीं सकता कोई। सर प्रोसिडेंशिया में अगर पूछते हैं कौन से लेवल का डिफेक्ट है? क्या प्रोसिडेंशिया में कौन से लेवल का डिफेक्ट है? कौन से लेवल का डिफेक्ट है? हाँ जी। सपोर्ट प्रोसिडेंशिया मींस द टोटल लैक ऑफ सपोर्ट्स, और सारा फिर आप सपोर्ट्स का नाम ले दीजिए। द बिगेस्ट सपोर्ट इज क्या sacral and cardinal ligament. जो लिगामेंट है, कार्डिनल लिगामेंट, यूट्रोसेक्रल लिगामेंट और प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट, ये 3 लिगामेंट्स हैं। अदर दैन the support is provided by levator ani and pelvic floor musculature. Level 1 support. हाँ जी सर इसको लेवल 1 सपोर्ट का डिफेक्ट कहते हैं। तो ये इस तरह की मजीद सर ये थ्योरी है, असल में ये पढ़ेंगी तो इनको पता चल जाएगा, सब थ्योरी में लिखा हुआ है। मैंने इस तरह से नहीं पढ़ा वो लेवल 2 नहीं, प्रोसिडेंशिया में सारे वॉल्स आते हैं ना, तो आप सिर्फ लेवल 1 कैसे कह सकते? लेवल 1 में अपाइकल होगा ना, जस्ट नहीं यूट्राइन डिसेंट लेवल 1 में है ना। मैंने इस तरह से नहीं पढ़ा हुआ, तो आप जरूर पढ़ के मुझे अगली बार बता दीजिए। मुझे तो नाम आते हैं सपोर्ट्स के लेवल 1, 2, 3, इस तरह की क्लासिफिकेशन मैंने नहीं पढ़ी, लेकिन आप मुझे बता दीजिए प्लीज। लेकिन अगर प्रोसिडेंशिया है, इट मींस ग्रॉस डेफिशिएंसी ऑफ सपोर्ट्स। तो ये अगला केस कर लें, अभी तो फिर 5 मिनट ही रह गए। कोई सवाल पूछ लिया, केस नहीं कर सकेंगे। एक क्वेश्चन है प्लीज सर। जी हाँ सर, पेशेंट से सर हम कैसे पूछेंगे कि एंटीरियर कंपार्टमेंट का डिफेक्ट और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट का, जैसे हिस्ट्री में हम पूछते हैं ना, तो वर्ड वो वर्ड क्या होंगे, पेशेंट से कैसे पूछना है सर? नहीं, आपको उसको डिफेक्ट तो वो नहीं आइडेंटिफाई करेगी, डिफेक्ट तो आप ही आइडेंटिफाई करेंगे। आप पूछेंगे कि प्रोलैप्स के साथ उसको यूरिनरी सिम्टम्स हैं कि बाउल सिम्टम्स हैं, या कोई सिम्टम्स हैं भी कि नहीं, ये कि have you got any difficulty with micturition, और डिफिकल्टी का लफ्ज़ ही बोलिए, फिर उसके आगे मुख्तलिफ किस्म की 2-3 चीज यूरोगायनेकोलॉजी की बात आ जाती है कि ओवर एक्टिव ब्लैडर है, कि वो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है, यूरिनरी स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है। ये वो अपने आप को उसमें ना फंसाइए, उसमें ना फंसाइए, आप फोकस ऑन टू प्रोलैप्स ही रखिए। सर अगर पेशेंट को सिर्फ मॉडरेट सिस्टोसील है तो पेसरी मॉडरेट सिस्टोसील को कवर करती है? नो, पेसरी मैंने अभी भी बताया आपको, पेसरी वो ऊपर जाके रेस्ट करती है लिवेटर एनाई पे, और ये सिस्टोसील जो है उसके नीचे है। तो इसलिए ऐसे पेशेंट के या तो पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज करिए, ये यंग पेशेंट है, और नहीं तो ट्रीटमेंट सही जो है वो है सर्जरी। और सर अगर एक यंग पेशेंट है और उसने 2nd डिग्री यूट्रोवेजाइनल प्रोलैप्स के साथ कंसीव कर लिया है, तो हम ऐसे पेशेंट को नॉर्मल का ट्रायल दे सकते हैं? नॉर्मल का ट्रायल दे सकते हैं? ट्रायल वेजाइनल डिलीवरी? जी जी, वेजाइनल डिलीवरी के लिए। ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? है किसी ने इसके
मुख्तलिफ बात भी कही है किसी ने, जो अगर प्रोलैप्स है, किसी तरह का भी प्रोलैप्स है, दैट इज नॉट कंट्राइंडिकेशन फॉर वजाइनल डिलीवरी। सिर्फ ये है कि उसके 3 महीने बाद उसकी रिपेयर या जो भी होना, डिलीवरी है तो मतलब यंग पेशेंट है तो रिपेयर ही हो। आप लोगों से मैनचेस्टर रिपेयर के स्टेप्स पूछे जा सकते हैं, क्या क्या उसमें होता है, कोई बोलेगी? मैनचेस्टर रिपेयर के स्टेप्स कोई बोले? कोई नहीं बोला? ला खाल वाला कोई। चले फिर मैं बोल दूं। जी सर, अगर आप डॉक्टर नसरीन बोलेंगी? नहीं, चले मैं बोल देता हूं। अगर आपसे पूछा जाए मैनचेस्टर रिपेयर के स्टेप्स बोलिए, तो आपने इस तरह से बोलना है कि आफ्टर aseptic measures draping the patient, number 1 is EUA, number 2 is D and C. ये 2 बोलने जरूरी हैं, फिर आप वो सर्जिकल स्टेप्स जो हैं वो बोलेंगे। It involves after DNC cardinal ligaments, then uterine arteries, then excision of the fallopian tubes and round ligaments. यूसुफ, मैं भी 15 मिनट पार होने चल कि तुम जा रहे हो? नहीं जी, मैं रुक जाऊँ। Then after uterine arteries, round ligament and tubes. After that, measures avoid enterocele, recurrence of enterocele. ये लफ्ज बोल दे बस। सर, मैनचेस्टर रिपेयर में हम यूट्रस नहीं निकालते, मैनचेस्टर रिपेयर में हम प्लाइकेशन करते हैं कार्डिनल लिगामेंट की और शॉर्टनिंग करते हैं। सर आप बता रहे हैं। सर हम इसमें मैनचेस्टर रिपेयर में हिस्टेक्टमी नहीं करते, यूट्रस नहीं निकालते। बैग योर पार्डन, मैं हिस्टेक्टमी की तरफ जा गया। सॉरी ठीक, मैं यूसुफ की तरफ ध्यान गया। कोई बात नहीं सर। तो हाँ जी, तो मैनचेस्टर रिपेयर में ये पहले 2 EUA DNC जरूर बोलने हैं। फिर मैनचेस्टर रिपेयर में है एम्पुटेशन ऑफ द सर्विक्स एंड ligation of cardinal ligaments in front of the cervix. फिर anterior colporrhaphy, colpoperineal. ये चले 10:30 हो गए, अब मुझे जाना है। थैंक यू वेरी मच। सर ये आपने मैनचेस्टर रिपेयर में EUA के बाद एंडोमेट्रियल क्यूरेटिंग बोला है? हाँ जी बिल्कुल, वो जरूरी है, because you are leaving uterus behind, you want to be sure that there is no endometrial pathology there. यही तभी मैंने दोनों ये बोले हैं जरूरी, इसके लिए बताया। हाँ, वरना शुरू होते हो वो एम्पुटेशन और वगैरह। चलो फिर अगले वेडनेसडे को फिर मुलाकात होगी, फिर इंशाल्लाह। कमेंट ऑन, तो मैं भूल पढ़ा नहीं सही तरह, क्या लिखा था किसी ने? थैंक यू। अल्सर, मैनेजमेंट ऑफ अल्सर जी सर, कमेंट ऑन मैनेजमेंट ऑफ अल्सर। अच्छा, वो फिर अगली दफा कह ले, मैं उस पर 5 मिनट लगाना चाहूँ, अगली दफा मुझे याद करवा दी। और खुदा हाफिज।